الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ آج ہمارا 5واں سبق جس میں ہم 6 ڈائریکشن یعنی 6 سمتیں پڑھیں گے۔ اصل کے اندر تو سبق ہمارا تھا ضمیر متصل ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جینا۔ اب اس کے ساتھ مختلف اسماء لگا کر ہم نے پڑھنے تھے، تو سب سے پہلے ہم نے جو لفظ پڑھا تھا رب ہو، رب ہما، رب ہم، رب کا، رب کما، رب کم، ربی، ربنا، وہ پڑھ چکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ضمیر متصل کے ساتھ 8ویں سبق پہ ہم مختلف اسماء پڑھیں گے۔ ان میں سے آج 6 ڈائریکشن ہے۔ قرآن کریم میں بھی کثرت سے استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ عام عربی تکلم حدیث مبارکہ میں ان الفاظ کا استعمال کا سچ ہے، کیونکہ سمتیں کے لیے، ڈائریکشنز کے لیے ان الفاظ کا استعمال لازمی ہے۔ 3 پیئر ہیں، 6 لفظ ہیں۔ پہلا پیئر فوق اور تحت۔ فوق معنی اوپر، تحت معنی نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں، امامہ آگے، خلفہ پیچھے۔ ایک مرتبہ پھر ان الفاظ کے اچھے کہ کیسے پڑھنا ہے، اعراب اور آخری حرکت کیا ہوگی۔ فوقا، فوقا قاف پر زبر ہوگی، فوقا اوپر، تحت تا پر زبر ہے، نیچے، اوپر نیچے 2 ڈائریکشن ہوگی۔ یہ پہلا پیئر ہے۔ دوسرا یمین شمال، یمین اور شمال دونوں پر میں نے تنوین پڑھی ہے، یمین شمال دائیں بائیں۔ امامہ حمزہ پر زبر ہے، امامہ آگے، خلفہ پیچھے، خلفہ امامہ پر بھی آخری حرف پر زبر ہے اور خلفہ پر بھی زبر ہے۔ غور سے دیکھیے گا، اوپر کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے فوق، نیچے کے لیے تحت دائیں، یمین بائیں، شمال آگے، امامہ پیچھے، خلفہ۔ ایک لفظ یہاں چھوٹا سا نیچے نظر آ رہا ہے، امامہ کے نیچے۔ امامہ قرآن کریم کے اندر خود لفظ بذات خود یہ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، عام عربی تکلم میں کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر امامہ لفظ خود ایک مرتبہ استعمال ہوا، اور امامہ کے بالکل ہم معنی مترادف سینونیم ورڈز ہے، بین یدی، بین یدی 40 ٹائمز استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ دونوں کا معنی ہے آگے، ایک ہے امامہ، دوسرا بین یدی، اکثر جگہ بین ایدیہم وما خلفہم، بین یدی کا آپ کے سامنے، آپ کے آگے، تو امامہ کا معنی سامنے یا آگے۔ 2 لفظ ہیں، امامہ اور بین یدی۔ جی تو 6 لفظ ہیں، ان 6 لفظ کو آج ہم پڑھیں گے اور اسی طریقے سے ضمیر متصل کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے فوقا کا لفظ ہے، فوقا معنی اوپر۔ ایک مرتبہ ان الفاظ کی میننگ کو دوبارہ دیکھیں گے۔ فوقا معنی ترجمہ کیجئے گا، اوپر۔ تحت کا معنی نیچے۔ یمینہ کیا معنی ہوگا، دائیں۔ شمال کیا معنی ہوگا، بائیں۔ اور امامہ کیا معنی ہوگا، آگے۔ اور خلفہ پیچھے۔ جی پہلے ایک مرتبہ فوقا سے گردان پڑھیں گے، پھر ایک ادھر بڑا زبردست پوائنٹ ہے، پھر اس پر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے آتے ہیں سبق کی طرف۔ جی میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، فوقہ، فوقہ، فوقہما، فوقہما، فوقہم، فوقہم، فوقاک، فوقاک، فوقکما، فوقکما، فوقکم، فوقکم، فوقی، فوقی، فوقنا۔ فوقنا۔ جی ترجمہ کریں گے، اس ایک کے اوپر، جی دونوں کے اوپر، ان سب کے اوپر، آپ ایک کے اوپر، آپ دونوں کے اوپر، آپ سب کے اوپر، میرے اوپر، ہمارے اوپر،
बहुत अच्छा जी। तो पहला लफ्ज था फौका, फौका माना ऊपर, तो हमने तर्जुमा किया फौकहू, फौकहुमा, फौकहुम, फौकाका, फौककुमा, फौककुम, फौकी, फौकना, उससे एक के ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, तो फौक माना ऊपर। दूसरा लफ्ज है तहता, जी पढ़ेंगे, तहतहू, तहतहु, तहतहुमा, तहतहुमा, तहतहुम, तहतहुम, तहतका, तहतका, तहतकुमा, तहतकुमा, तहतकुम, तहतकुम, तहती, तहती, तहतना। तहतना। जी मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक के नीचे, तहतहु, उन दो के नीचे, तहतहुमा, उन सब के नीचे, तहतहुम, आप एक के नीचे, तहतका, आप दो के नीचे, तहतकुमा, आप सब के नीचे, तहतकुम, मेरे नीचे, तहती, हम सब के नीचे। तहतना। जी गौर से 2 मरतबा इन अल्फाज को पढ़िएगा, पढ़िएगा पढ़िएगा, आपके पास 1 मिनट टाइम है, देख कर पढ़िएगा। जी सबने पढ़ लिया। फौक और तहत, फौक का माना ऊपर, तहत का माना नीचे। और जो ऑडियो सबक जब सुन रहे होते हैं रिकॉर्डिंग, तो वो भी यहाँ वीडियो को रोक कर 1 2 3 मरतबा इसका मुताला करें। जी अब ऐसे है कि अगले लफ्ज हमारे पास यमीन और शिमाल है, तो इसका एक दफा मुताला कीजिएगा, गौर से पढ़ें, अपनी तरफ से कोशिश करें पढ़ने का, देखकर इशारे करते हुए, फिर इसको हम एक नए अंदाज से पढ़ें। जी यकीनन आपने मुताला कर लिया है, गौर से यमीन और शिमाल पढ़ लिया है, और इन दोनों में कुछ फर्क भी नजर आ रहा होगा कि फौका और तहता दोनों के ऊपर जबर था। फौकहू, फौकुहू नहीं था, का पर पेश नहीं है। तहतहू, ता पर जबर है, तहता, तहतहू, तहतहू नहीं, ता पर पेश नहीं है। देखिए तमाम पूरी की पूरी गिरदान में कहीं भी फौका, फौकहुमा, फौकका, फौककुमा, कौफ पर ये जो मोटा कौफ है, सब जगहों में जबर है, स्वय वाहिद मुतकल्लिम के, यहाँ तो मजबूरी है। ताहता में भी देख लें, सब हुरूफ पर जबर है, लेकिन ये यमीन और शिमाल पे आते हैं तो यहाँ इनके आखिरी हरफ पर पेश है, जबर नहीं है। तो 4 अल्फाज, पहले 2 पेयर, पहला पेयर इसमें 2 लफ्ज फौक होता है, और दूसरा पेयर अमाम और खल्फ, इन पर जबर है, यमीन और शिमाल में पेश है। तो आप जब गिरदान पढ़ेंगे तो इसी तरीके से पहले पेयर में दोनों लफ्ज पर जबर, आखिरी पेयर की भी दोनों लफ्ज पर जबर दरमियान में पेश होगी। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक के दाएं, यमीनुहु, उन 2 के दाएं, यमीनुहुमा, उन सब के दाएं, यमीनुहुम, आप एक के दाएं, यमीनुका, आप 2 के दाएं, यमीनुकुमा, आप सब के दाएं, यमीनुकुम, मेरे दाएं, यमीनी, हमारे दाएं। यमीनुना। जी तर्जुमा कर, अब शिमालू मैं इसी तरीके से तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक के बाएं जानिब, शिमालुहु, उन 2 की बाएं जानिब, शिमालुहुमा, उन सब की बाएं जानिब, शिमालुहुम, आप एक के बाएं, शिमालुका, आप 2 के बाएं, शिमालुकुमा, आप सब के बाएं, शिमालुकुम, मेरे बाएं, शिमाली, हम सब के बाएं। शिमालुना। जी 3 मरतबा आपने पढ़ना है। यमीन और शिमाल को एक दफा पढ़िएगा, देखकर आवाज से, आवाज से, जैसे आपका दिल करता है, लेकिन पढ़िएगा। जी बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा। जी सबने एक दफा पढ़ लिया। फौक तहत 2 लफ्ज, ऊपर नीचे, यमीन शिमाल, दाएं और बाएं। आखिरी लफ्ज है अमाम और खल्फ, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपके लिए बतौर सबक और होमवर्क के है कि अमामा और खल्फा ये दोनों आपने सबक में सुनाने हैं।
अमामहु खल्फहु। दूसरा, जब इसके बाद ब्रेकआउट होगा तो उस ग्रुप में भी एक दूसरे को सुना लीजिएगा। तो ये दोनों आपके सुनाने के हैं, फौक और यमीन, इनमें से, बल्कि फौक सिर्फ एक लिखने का है, फौकहु ये एक लिखने का है, और ये बाकी आप अपने ब्रेकआउट ग्रुप में एक दूसरे को सुनाएंगे। अब सिर्फ एक लफ्ज है यमीनुहु, इस पे आपने अभी 3 मरतबा पढ़ लिया है, आप अपना इम्तिहान लीजिएगा, एक मरतबा बगैर देखे पढ़िएगा बिस्मिल्लाह। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं वो भी बिल्कुल इसी अमल से गुजरा करें, जहां जो चीज हो उसी वक्त वीडियो रोकें, आप अपना सेल्फ एग्जाम लें, अपनी गलतियां मिस्टेक चेक करें, फिर उसके बाद 1-2 मरतबा मुताला करें, फिर आगे जाइएगा। जी बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिएगा। यमीन हुआ आपने पढ़ना है बगैर देखे, आप अपना इम्तिहान खुद लीजिए। जी, अब आप जल्द से जल्द अपने अपने ग्रुप को पहले ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप आज का सबक दोहरा लें। सबक आपका जो है वो आपके सामने स्लाइड मौजूद है। कोशिश करें कि हर एक, अच्छा ये बहुत अच्छा है कि एक फौक से सुना दे, एक तास से सुना दे, एक यमीन से, एक शिमाल से, एक अमाम से, खल्फ से, लेकिन पहले अमाम और खल्फ ये लाजमी सुनाइएगा। जी जी बिस्मिल्लाह, अपने अपने ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और कोशिश करें कि एक एक सुनाए, दूसरा दूसरा सुना ले, एक दूसरे के साथ हेल्प कीजिएगा। जी, ये आपके पास ग्रुप का लिंक आ चुका है, आप अभी उसको ज्वाइन करें, सिर्फ आपने क्लिक करना है उस पर। जी वर्दा गुल साहिबा, आपके पास ग्रुप नंबर 5 में आपका आया हुआ है, आप ज्वाइन करें। जी, नेहा अजीम साहबा, समीना, सना और यास्मीन यूनस, आप भी अपना अपना ग्रुप ज्वाइन करें, आपके वहां कोलीग आपका वेट कर रही हैं। जी, सना दाऊद साहिबा, यास्मीन यूनस, अमीना, नेहा और क्लास के नाम से आप भी अपना अपना ग्रुप ज्वाइन करें, आपके क्लासमेट आपका वेट कर रही हैं, और वहाँ बेहतर है कि आप सबक रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। जी, 4 खवातीन अभी बाकी हैं, आप भी अपना अपना ग्रुप ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।